বিজেপিৰ পিছত কৃষকৰ গৰ্জনত কঁপিছে মোদী চৰকাৰ। গাড়ীয়ে গাড়ী আহিছে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষক। এবাৰ বিপদত পৰিছে মোদী চৰকাৰ। এফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ আৰু আনফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ। হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিয়া হৈছে দিল্লী আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। ইতিমধ্যে চিজেপিৰ পিছত দিল্লী কঁপাবলৈ সাজু হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। এই মুহূৰ্তত হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে দিল্লী আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। আমি দেখাই আছো দৃশ্যাংশ। এয়া হৈছে দিল্লীৰ দৃশ্যাংশ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে দিল্লী কঁপাবলৈ সাজু হৈছে। ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাড়ীয়ে গাড়ী আহিছে কৃষক। বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো বৰ্ডাৰ আৰু 163 ধাৰা জাৰি কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। মোতায়েন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত সুৰক্ষা বাহিনী। প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ বেৰিকেড দিছে আৰক্ষীয়ে। আৰু এফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ আৰু আনফালে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও কৃষক নেতাক আটক কৰিছে হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে। চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ সাজু আছো বুলি ঘোষণা কৰিছে কৃষকসকলে। আৰু এয়া আমি দেখাই আছো দৃশ্যাংশ। চিজেপিৰ পিছত কিদৰে দিল্লী কঁপাবলৈ সাজু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। এয়া সাজু হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে দিল্লী এক প্ৰকাৰ কঁপি আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতি দিল্লী এক প্ৰকাৰ কঁপি আছে। আৰু দিল্লীৰ পিছত এবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৃষকে কঁপাইছে দিল্লী। এবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লী কঁপাইছে কৃষকে। দিল্লীৰ আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি ইতিমধ্যে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ তৰফৰ পৰা অন্বেষণ ঘোষণা কৰিছিলে। লগতে সোনম ৱাংচুক যিসকলে আচলতে বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকৰ কোনো খবৰ ৰখা নাই বা তেওঁলোকে অন্বেষণত আছে, সেই কথা জানিও নজনাৰ ভাও ধৰা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। সোনম ৱাংচুকক আৰক্ষীয়ে উঠাই নিয়াৰ পাছতেই একশ্যন লৈছিলে চিজেপিয়ে ধৰ্মঘট ঘোষণা কৰিছিলে। চিজেপিৰ তৰফৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ অন্ন ত্যাগ কৰি অন্বেষণত বহাৰ ঘোষণা কৰিছিলে দীপকে। আৰু তাৰ পাছতেই সোনম ৱাংচুকক বলপূৰ্বক লৈ যোৱাটো দিল্লী আৰক্ষীৰ জীৱনত ডাঙৰ ভুল বুলি হুংকাৰ দিয়া হৈছিল। এবাৰ প্ৰতিশোধ লোৱা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিলে। আৰু এক প্ৰকাৰ দিল্লী আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি অন্বেষণ ঘোষণা কৰিছিলে দীপকে। আৰু অভিজিত দীপকে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ দিল্লী কঁপি উঠিছিল চিজেপিৰ প্ৰতিবাদত। আৰু এবাৰ চিজেপিৰ সমান্তৰালকৈ এইবাৰ দিল্লী কঁপাবলৈ সাজু হৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। আমি এই মুহূৰ্তত পুনৰ কৈছো দৃশ্য ক্লিপ দেখাইছো। চিজেপিৰ পিছত এবাৰ দিল্লী কঁপাবলৈ সাজু হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। আৰু হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰি দিয়া হৈছে দিল্লী আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা। ভাৰত আমেৰিকাৰ বাণিজ্যিক চুক্তিৰ বিৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আৰু গাড়ীয়ে গাড়ী আহিছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষক। সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো বৰ্ডাৰ। 163 ধাৰা জাৰি কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে। মোতায়েন কৰা হৈছে অতিৰিক্ত সুৰক্ষা বাহিনী। প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ বেৰিকেড দিছে আৰক্ষীয়ে। ইফালে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ, আনফালে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ। ইতিমধ্যে কেইবাগৰাকীও কৃষক নেতাক আটক কৰিছে হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে। চৰকাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ সাজু আছো বুলি ঘোষণা কৰিছে কৃষকসকলে। আৰু মুঠৰ ওপৰত চিজেপিৰ পিছত এবাৰ দিল্লী কঁপাইছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে। এই মুহূৰ্তত যদি কিবা মন্তব্য আছে, মন্তব্যৰ লগত যদি সম্পূৰ্ণ দৃশ্য আমি দেখাব চেষ্টা কৰোঁ, ভালদৰে চাওক। अमेरिका व्यापारिक समझौता जो है आप जब कर रहे थे तो आपने देश जितने भी स्टेक होल्डर से, चाहे किसान से, उनसे भी वार्ता नहीं की, चाहे छोटे लघु उद्योग के व्यापारी थे उनसे भी बात नहीं की, दुकानदारों से या मजदूरों से जो अफेक्टेड होने वाले थे उनसे किसी से वार्ता नहीं की। और जो आप प्रचार माध्यमों में बोल रहे हैं अभी इसमें डेयरी और कृषि नहीं है जो हम सुनते हैं। मैं कहता हूं जो समझौता बाहर आया है मैं उसकी आपको लाइनें कहता हूं। उसमें स्पष्ट लिखा सोयाबीन, मक्का, कपा, ड्राई फ्रूट, सेब, नागपति और अन्य वस्तुएं भी। और लास्ट में लिखा है और खेती पदार्थ उसका बता दे। और सीधा उसमें वाइट रेंज ट्रेड एग्रीमेंट है। तो हम लोग देखते हैं क्रिकेट में भी एक वाइट होती है, तो खुलेपन को वाइट करते हैं। अगर उसका हिंदी आप ट्रांसलेट करें तो व्यापक व्यापारिक समझौता, ये व्यापकता में सब कुछ आ जाता है। तो आपने सारा देश उसके सामने रख दिया। वो जो चाहेंगे। हाँ, हमारा जो देश का टैरिफ बैरियर था वो टैरिफ बैरियर ही था, बैरियर रुकावट थी, वो तो आपने जीरो कर दिया। नॉन टैरिफ बैरियर भी, क्योंकि भारत में अभी तक नॉन वेज फीड नहीं आई थी, तो वो भी आप हटाएंगे। जीएम प्रोडक्शन नहीं आने थे, ये नॉन टैरिफ बैरियर है, वो भी आपने मान लिए। तो आप इतना बड़ा समझौता गोपनीय ढंग से कर रहे हैं। समझौते का देश के समक्ष रखना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। और दूसरा,
हमें जो कुछ भी मालूम होता है अमेरिका से मालूम होता, अमेरिका की प्रेस रिलीज से मालूम होता, आप हमें कुछ नहीं बताते। तो हम तो बड़े निम्र होकर प्रधानमंत्री से अपील करते हैं, समझौता करने से पहले एक बार सोचे, रुके, किसानों से वार्ता करें। हम कहते हैं ये समझौता देश के हित में नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसी की आवाज उठाने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, पहली बात तो उस तरह का ये आंदोलन नहीं है, वो मोर्चा था, ट्रैक्टर ट्रॉलियों, हजारों ट्रैक्टर ट्रॉलियों था, उसका प्लानिंग अलग से भी दिल्ली जाके हम आंदोलन करेंगे। ये मोर्चा नहीं है, ये एक दिन की महारैली। आज देश बचाओ मोर्चे की बड़ी कॉल थी, तो दिल्ली किसान घाट के ऊपर जो 21 तारीख को एक सांकेतिक रूप में 4-5 घंटे का प्रोग्राम है, तो उसके लिए आज हमारा ब्यास जो अमृतसर के नज़दीक है, एयरपोर्ट बनाया था। गुरदासपुर और अमृतसर के किसान जो जहाँ पर इकट्ठे होके और दिल्ली को रवाना होंगे। तो कल जो प्रोटेस्ट की डेट है 21 जुलाई है, तो अपने प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जहाँ से करीब 40-50 बसें होगी और उधर दूसरी साइड में तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, अपने सभी किसान डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग एक स्पॉट में इकट्ठे हो रहे हैं। लुधियाना में इकट्ठे हो जाएंगे, इधर से जलंधर, हुशियारपुर, ये इधर के किसान भी जो आगे जाके मिल जाएंगे, तो ये बड़ा एक विशाल काफिला हो। देखो, अगर सरकार वहाँ अपने शंभू बॉर्डर पर हमें रोकती है, तो इसका मतलब तो साफ है कि देश का किसान जो देश हित में लड़ना चाहता है, सरकार उनको दिल्ली में आने नहीं देती। पिछली बार भी हम लोग गए थे, तो 1 साल से ज़्यादा समा शंभू बॉर्डर में बैठ के हम लोग बिताया था। उस टाइम भी सरकार की घबराहट थी। देश के लोग देश के मालिक है, क्यों नहीं सरकार दिल्ली जाने देती? हाँ, सरकार जो हमारी पूंजीपतियों के साथ में मिली हुई है, फैसले जो देश के किसानों से, मजदूरों से छुप के पूंजीपतियों के साथ में जो फैसले किए जा रहे हैं, जो देश हित में नहीं है। हमारे देश का किसान अभी इतना समझदार हो रहा है, वो अपना नफ़ा नुकसान समझता है कि हमारे भारत की जो खेती है, 80% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। तो अगर हमारे पास खेती नहीं रही, तो दूसरा विकल्प क्या है? ये लोग क्या करेंगे? लोगों के बच्चों का भविष्य क्या होगा? हमारे बच्चों के भविष्य में कहीं भी कोई अच्छा नहीं दिखाई देता। कोई सरकार रोजगार के वसीले पैदा नहीं कर रही। जो भी अपने एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, उनको भी निकाला जा रहा है, सभी प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। तो देश के लोगों ने क्या करना है? बच्चों का भविष्य क्या होगा? इसके लिए हमारे देश का हर एक नागरिक चिंतित है कि हमारे देश का बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये जो रैली एक दिन का ही होगा? हाँ, हमारा एक दिन का देश बचाओ मोर्चे का एक दिन का ऐलान है। इसके बाद में आगे सरकार का देखते हैं कि क्या रवैया। वो हमें शंभू बॉर्डर में रोकती है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री वाकई 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, तो उनको कहीं भी किसानों को रोकना नहीं चाहिए। बड़े पीसफुली तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग 25 साल से तो लगे हुए हैं। तो एजेंसियां हमारे रवैये से सभी अच्छी तरह से जानू हैं कि देश का किसान है, बड़ा पीसफुल तरीके से आंदोलन करना, अपनी बात रखना सभी को हक है।